So we were discussing yesterday about hemoglobin. So today we will discuss the oxyhemoglobin dissociation curve. Okay, so we will see the oxyhemoglobin dissociation curve. ठीक है. Now इसका मतलब क्या होता है? That what percentage of oxygen saturation is reported in hemoglobins at different partial fractions. ठीक है. तो यहाँ आप देखिए. So this is the concept. Fine. So ये आपका oxyhemoglobin dissociation curve है. Okay. So we can write here. Okay, oxyhemoglobin dissociation curve. ठीक है. So this is the oxyhemoglobin dissociation curve. Clear? Now अब आप क्या देख रहे हो? In the x-axis, when we are increasing the PO2, ठीक है. तो जब हम लोग PO2 को इंक्रीज कर रहे हैं x एक्सिस में, ओके, सो इन द y एक्सिस व्हाट आर वी सीइंग? देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीजन सैचुरेशन. So as you are increasing the PO2 in the x-axis, there is an increase in saturation till a point. Suppose this point. अगर हम लोग देखें, till this point, there is what? There is an increase in oxygen saturation. But after that, there is constancy. Okay. So after that, this part of the curve, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस part of the curve को हम लोग कहते हैं asymptote. Okay, asymptote या क्या? Straight line. ठीक है जी. मतलब तापर आउ बेसी बढ़ुनी कि कम. Okay. So this part of the line is called asymptote. So इसीलिए what happens and why it happens like this? Okay, this is because hemoglobin has how many sites? 4 heme sites. Okay, आप देख रहे हो पहले स्टेज में there is a lag phase. माने आप देख रहे हो कि around 20 मिलीमीटर मर्करी हो रहा है and पाखापाखी 20% saturation हो रहा है. Okay, means around 30% saturation. तो इसलिए ये जो स्टेज है of the curve, this curve is referred to as lag phase. Okay, this is a very slow phase. But यहाँ आप क्या देख रहे हो? Sudden increase. So this is called exponential phase या log phase. ठीक है. And इधर आप देख रहे हो फिर again this is a decrease phase. So this is again there is a lag phase. ठीक है. Now इसका कारण क्या है कि पहले actually here there are this is तो this जो कर्व है, so ये कर्व किस तरह का है? So this curve is basically referred to as a what? Sigmoidal curve. है कि नहीं? So this curve is basically referred to as a sigmoidal curve. Means ये S-shaped है. Okay, sigmoidal curve or we can say S-shaped curve. Now उसका reason क्या है? उसका reason है that in case of hemoglobin there are 4 sites. So we'll save this and we'll go to the whiteboard.
Okay, now we, as you have written yesterday, हम लोगों ने कल क्या लिखा था? तो हम लोग लिखे थे that hemoglobin is equal to 4 into heme, okay, 4 into heme plus 1 globin, okay, plus 1 globin. Therefore, what happens? Therefore, there is difference in affinity of different heme, okay, molecules. ठीक है, तो आपका जो अलग अलग हीम मॉलिक्यूल्स है उसका अलग अलग एफिनिटीज है. ठीक है, तो उसके बाद एक और रीजन है, आप जानते हैं दैट हीमोग्लोबिन कैन बाइंड टू वो ऑक्सीजन है कि नहीं, तो ऑक्सीजन कोड बाइंड होची हीम, ओके, एंड CO2 ब्रैकेट रे ग्लोबिन, ओके, रिवर्सिबली. ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड दिस. तो इसका मतलब है जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन एंड CO2 को रिवर्सिबली बाइंड करता है. इसका मतलब जब वो ऑक्सीजन ना ही ला रहा है तो वो CO2 ला रहा है. ओके, सो व्हेन इट इज, ओके, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं fine, we can write that when deox blood, okay, moves to the lungs, it is saturated with क्या? CO2. Okay, it is saturated with CO2 and so it has no or low affinity for oxygen. ठीक है, वो ऑलरेडी CO2 को लेके आ रहा है. ओके, बट in the lungs, as the partial pressure of O2 increases, ओके, जैसे धीरे धीरे आपका पार्शियल प्रेशर O2 बढ़ेगा, ओके, तो affinity of O2 increases, okay, but very low. So first O2 binding occurs at a higher PO2 difference. मतलब आपको ज्यादा प्रलोभन देना पड़ रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी आप कोई चीज खा रहे हैं, आपको जब कोई दूसरा चीज दिया जाए तो आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इसीलिए आपको फिर ज्यादा पटाना पड़ता है, अरे खा लो ये अच्छा है एटसेट्रा. फाइन, सो आपको ज्यादा प्रलोभन देना पड़ता है. ठीक है जी, बट as the first O2 binds to heme, there is a considerable rise in affinity of hemoglobin for oxygen. ठीक है, this is called positive cooperativity.
ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। जैसे आप में से एक को पूछा गया भाई कैसा लग रहा है क्लास, तो आपने बोला सर अच्छा लग रहा है। जैसे एक बच्चा अच्छा लग रहा है बोलता है, तो उसके दोस्त फिर क्लास में ज्वाइन करना शुरू करते हैं, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। बट सपोज आप फीडबैक देते हो बेकार है, यूजलेस है, बोर करते हैं, तो उससे क्या होता है? फिर दूसरा ज्वाइन करने का चांस कम हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोऑपरेटिविटी। बट इधर क्या हो रहा है? सिंस पहला ऑक्सीजन जब बाइंड कर रहा है, तो ये एफिनिटी को बढ़ा दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। Hence, now the second O2 binds at a lesser PO2 difference. आसेरी, तो lesser PO2 difference, ठीक है जी? तो and so on। तो इसीलिए हाईएस्ट एफिनिटी किसके लिए होगा बोलो? हाईएस्ट एफिनिटी इज सीन इन द केस ऑफ विच ऑक्सीजन? बोलो, तो सबसे ज्यादा एफिनिटी किस ऑक्सीजन के प्रति होगा? सर फर्स्ट ऑक्सीजन। फर्स्ट का तो सबसे लोएस्ट है, फर्स्ट का सबसे लोएस्ट है। क्यों? बिकॉज आपको चेंज करना पड़ता है ना एफिनिटी। ओके, सपोज ऑन संडे यू यूज्ड टू ईट मटन रोटी, तो आप मटन रोटी अब खा रहे हो, उसके लिए एफिनिटी अच्छा होगा ना? आज डालमा रोटी बनाए तो अच्छा लगा, हायर एफिनिटी होगा। तो डालमा रोटी बोलेंगे तो थोड़ी तुम खाओगे, बिकॉज यू ऑलवेज यूज टू गेट मटन। बट जैसे ही थोड़ा डालमा खाए अच्छा लगा, तो अच्छा लगा, तो अगर पहला रोटी खाने में 10 मिनट लग रहा है, तो दूसरा 8 मिनट में खत्म हो जाएगा। सपोज तीसरा 6 मिनट में खत्म होगा, चौथा 4 मिनट में खत्म होगा, उसके बाद और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भूख मर गया। तो समझ रहे हो? दैट इज व्हाई हाईएस्ट एफिनिटी इज सीन इन द केस ऑफ 4 ऑक्सीजन। ठीक है? नाउ देयर इज नो मोर affinity. Why? As there is no more sight. ओके, तो ये आपका कंसेप्ट है विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्राफ। तो इसीलिए अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्राफ देखें, दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट देखा गया है। क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ वो ग्राफ को दोबारा बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है जी? तो सपोज ऑन द एक्स एक्सिस एंड विल टेक ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या ले रहे थे? वी आर टेकिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इंक्रीज लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब हम उसको एक्स में बढ़ाएंगे। नाउ वाई में हम लोग क्या ले रहे थे? वाई एक्सिस में हम लोग ले रहे थे क्या? परसेंटेज saturation of hemoglobin with oxygen. ठीक है, तो we were taking percentage saturation of hemoglobin with oxygen. ठीक है, ओके। सो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हम लोग लेंगे कहाँ?
in the y-axis. ठीक है, तो सपोज इन द y-axis हम लोग ले रहे हैं नाउ। तो ये जो कर्व है ये एस शेप्ड कर्व है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एस शेप्ड कर्व बनाएंगे। दिस इज आल्सो कॉल्ड ए सिग्मोइडल कर्व। तो पहले लैग होगा, फिर बढ़ेगा, ओके, एंड एक पल में आके कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ अगर हम लोग यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, so it is like this. So this is actually, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग कहते हैं 97% सैचुरेशन। क्यों? क्योंकि जो इन आवर बॉडी 100% सैचुरेशन नहीं हो सकता है। सो 100% सैचुरेशन होता है 116 mmHg में, which is not there in our body. So if we plot a line, okay, तो इधर से अगर हम लोग नीचे प्लॉट करें एक लाइन, ठीक है, तो we'll drop a perpendicular, okay, so we will drop a perpendicular like this. तो अब ये जो लाइन है ये आपका 106 मिलीमीटर मर्करी में आएगा। ओके, सो दिस वैल्यू विल बी कितना, 116 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो कि हमारे बॉडी में होता नहीं है। तो इन आवर बॉडी कितना होता है, इन आवर बॉडी मैक्सिमम यहाँ हो रहा है। So that is 97% saturation. So in our body there is 97% saturation. तो कितना हमारा हाईएस्ट है इन आवर बॉडी, 105 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, सो ये आपका जो वैल्यू है दिस इज 105 मिलीमीटर ऑफ, ठीक है। सो ये आपका 97% है। नाउ अगर ये 100% लाइन है तो ये लाइन कौन सा है, 100% लाइन, तो जो कि हमारा रीच नहीं करता है। तो अब ये अगर 100% लाइन है तो इसके बिल्कुल हाफ में हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो वी विल कट दिस लाइन एग्जैक्टली एट हाफ। ओके, सो एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, हाफ में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये जो लाइन कितना परसेंट वाला है, ये लाइन है 50% लाइन। तो अब 50% लाइन में जो सैचुरेशन हो रहा है, वी विल ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट साइड टू द y-axis, x-axis। ठीक है, तो जिस जगह ये परपेंडिकुलर गिरेगा, सो दैट इज कॉल्ड द P50। ओके, दैट इज कॉल्ड द P50। ये 50 सबस्क्रिप्ट होगा। ओके, तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता, उसको आप लिखेंगे। एंड फॉर एडल्ट हीमोग्लोबिन इट इज 26 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अंडरस्टूड? तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, 50% सैचुरेशन लाइन। ओके, सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड 50% सैचुरेशन लाइन, एंड ये एफिनिटी को इंडिकेट करता है। तो आपका 50% सैचुरेशन हो जा रहा है एट 26 mmHg। ओके, एंड अराउंड 100% सैचुरेशन हो रहा है एट 97% एट 105 mmHg। ठीक है, सो ये जो है दिस कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, बताइए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताइए, बोलो जल्दी।
What is the 26 50%. हाँ 6 Yes. millimeter 50%. यस माने आप इसको P50 कह लो कॉमा 50% saturation कह लो. Understood? What is the coordinate of this line? तो ये क्या है? ये आपका 0 है कॉमा 50%. ठीक है जी. दिस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका x is 0 and y is क्या 50. क्लियर. तो ये आपका कोऑर्डिनेट है इस लाइन का. उसी तरह इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है बताओ. तो x is P50, y is 0. ठीक है. क्योंकि बहुत लोग को मैं बोलूंगा ना P50 कहाँ है वो यहाँ दिखाते हैं. तो ये P50 है ना ये P50 है. Which is P50, the bottom one and this one? बोलो. The bottom one. ये जो जंक्शन है ये P50 है ना ये जंक्शन P50 है. The bottom one. बट बहुत लोग इसको दिखाएंगे ये P50 है. So what does P50 indicate? तो P50 indicates the affinity of hemoglobin for oxygen. ठीक है. Now what is the definition? Can anybody tell? तो P50, okay, so P50 is defined as the value of partial pressure of oxygen at which hemoglobin is saturated. Okay, at which hemoglobin is 50% saturated with oxygen. ठीक है. तो ये है आपका definition. ठीक है जी. So this is the definition. So P50 is defined as the value of partial pressure of oxygen at which hemoglobin is 50% saturated with. ठीक है. तो ये आपका उसका definition हो गया. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है आपका affinity. So then what can you say? तो higher या P50 is dash proportional to PO2. बताओ. P50 is dash proportional. बताइए. तो P50 is sorry affinity. P50 is dash proportional to affinity. इसको fill up करिए. Is dash proportional Inversely. to affinity. Inverse. बोलो. Sir, inversely. Very good. So actually it is inversely proportional. Okay. So ये आपका inversely proportional होता है. इसका मतलब क्या है? Higher the P50, lower is the affinity and vice versa. Understood? तो जैसे आपका P50 बढ़ेगा ये इंडिकेट करता है कि एफिनिटी कम हो रहा है. जैसे आपका एफिनिटी सपोज एक कंडीशन है नाउ. तो पहाड़ों में जाने से क्या होगा P50? बोलो. पहाड़ों में जाने से P50 क्या होगा? बढ़ेगा ना घटेगा?
पहाड़ों में क्या होता है, घटेगा। ऑक्सीजन की कमी होती है। घटेगा, बोलो, सोचो सोचो। तो घट जाएगा। P50 घटेगा ना बढ़ेगा? तो घटेगा। बावरी, पहाड़ों में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है ना घटता है? घटता है। तो P50 लेवल क्या होगा? सर ऑक्सीजन बाहर घटता है, इसलिए मतलब बॉडी को सेम लेवल का ऑक्सीजन देने के लिए हीमोग्लोबिन का एफिनिटी बढ़ जाता है, इसलिए P50 का वैल्यू घट जाएगा। सुनो, एक्चुअली आपका थॉट अच्छा है बट आंसर गलत है। क्योंकि भाई आप एफिनिटी आपको एक ही रखना है, सोच लो। तो अगर हमको एफिनिटी बढ़ाएगा हीमोग्लोबिन, ओके, एक्चुअली शी इज थिंकिंग करेक्टली, बट वी कैनॉट हैव डुअल एफिनिटी। समझे कि नहीं? आप ये छत्ता पट्टी नहीं हो सकते। सर डू यू लाइक जे सर? यस सर, यस सर, वेरी मच वेरी मच। फिर जाके पूछेंगे डू यू लाइक शुभदीप्त सर? यस यस यस, वेरी मच वेरी मच। अरे अबे किसी एक को लाइक करो, इसको लाइक करो या उसको लाइक करो। समझ में आया? आप छत्ता पार्टी के मत बनो, जिधर बारिश उधर छतरी। तो इसलिए बॉडी हैज टू सिलेक्ट वन कंसेप्ट। तो अगर हम प्रोपोर्शनल, अगर आपका बात सुन लें एंड हम एफिनिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो अब कम ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ा रहे हैं। तो जब आपका P50 एफिनिटी बढ़ा देंगे तो will the RBC give oxygen to the body or not? अगर हीमोग्लोबिन का नो सर। ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी बढ़ जाएगा तो वो ऑक्सीजन दे। जैसे आपको एक खिलौना चाहिए, एक्चुअली मैं जैसे कहता हूं कि जो आपका ईयर रिंग है नंदिते, नंदिता, आर यू देयर बेबी? Yes, sir. आप अपना ईयर रिंग मेरे को दे दोगे? सच बोलो। No, sir. क्यों? सर क्योंकि मुझे मेरा इयररिंग पसंद बहुत है। नो बेबी, क्योंकि वो गोल्ड का है, महंगा है। अगर 20 रुपए वाला ईयर रिंग पहन रहे होते तो देते कि नहीं? मे बी। समझ में आया? क्योंकि वहां में भी बोल रहे हो बट इधर काट के मना कर रहे हो। तो समझ रहे हो? तो इसलिए अगर एफिनिटी हाई रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लो। तो आपको लंग्स में ऑक्सीजन भर के देखो मेरा ऑक्सीजन, देखो मेरा ऑक्सीजन करना है ना, सेल्स को देकर उनको जिंदा रखना है? बोलो। उसको देकर सेल्स को देना है। समझ में आया? तो इसलिए योर कंसेप्ट इज राइट बट एक्चुअली द आंसर इज रॉन्ग। क्योंकि बॉडी क्या करता है, वो हर समय डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करता है। लाइक अभी जैसे व्हेन दिस क्राइसिस टाइम केम, तो मोदी जी ने, एवरीबडी इज नाउ शाउटिंग एट मोदी। आप देख रहे हो कि नहीं? है डुबा दिया बाहर से। ये जो कांग्रेस, हमारे जो दामाद हैं, कौन ना, जो पप्पू, पप्पू क्या बोल रहा है? पप्पू, उसकी माँ, उसकी बहन, अरे मोदी ने कोरोना फैला दिया, मोदी बढ़ा दिया, मोदी के पीछे पड़ गए, गाली दे रहे हैं। एवरीबडी इज कोल्डिंग मोदी, है कि नहीं? बट इफ यू रिमेम्बर द फर्स्ट स्पीच मोदी गेव, जब उन्होंने लॉकडाउन किया तो उन्होंने कैटेगरिकली समझाया कि देखो भाइयों बहनों, आप देखिए कि अगर 21 दिन का लॉकडाउन हो रहा है, आप इज्जत से उसको फॉलो करिए, घर में रहिए, ओके, बाहर मत घूमिए, अदरवाइज हाथ से चला जाएगा। बोला था कि नहीं मोदी जी ने? यस सर। बट लोगों ने क्या किया? आमे आगे माछ टाकिनी आसीचु अब माछ नेबुन खाऊ कौन? आमे आलू टिके नहीं आवे आसीचु, आमे टिके ब्रेड खीर नहीं आसीचु, आमे टिके परिवा नहीं आसीचु। अरे जब तुम सब लेने जाएगा एंड डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेगा, कल कोरोना फैलेगा तो मोदी को गाली देने से कैसे होगा?
So understand? So what happened? People strictly disobeyed orders. है कि नहीं? And that is what Modi told. If you disobey orders रे बाबा, ଆଉ ପରେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇଲେ କିଛି କରି ହବ ନାହିଁ. Understood? So that is the concept. तो इसीलिए what happens here? तो इसलिए बॉडी ने क्या डिसाइड किया? उन्होंने बोला देखो मालिक लोग प्लीज आपको असुविधा जरूर होगा बट अपने लेबर्स को पैसा थोड़ा दे देना ताकि वो लोग इस हार्डशिप में जी सके. बट किसी मालिक ने नहीं सुना. तो व्हाट हैपेंड? नाउ द पीपल स्टार्टेड गोइंग बैक होम एंड व्हेन दे स्टार्टेड गोइंग बैक होम दे ट्रांसपोर्टेड द डिजीज. है कि नहीं? तो जैसे अभी हमारा गंजाम जिला है वो टोटली जीरो था. है कि नहीं? बट जैसे ही माइग्रेंट लेबर आए अब वो हीरो हो गया है. सो लाइक दैट. तो इसलिए व्हाट हैपेंस? तो इसीलिए जो कंसेप्ट है अभी द बॉडी इज इन हार्डशिप क्योंकि जब आप ऑल्टीट्यूड्स पे क्लाइंब करते हो बाहर ऑक्सीजन नहीं मिलता. तो बॉडी दो चीज कर सकता था. आइदर तो वो ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ाता या फिर ऑक्सीजन एफिनिटी घटाता. तो एफिनिटी बढ़ाने से क्या होगा? हीमोग्लोबिन में ज्यादा ऑक्सीजन अटैच होगा बट टिश्यूज को नहीं देगा. तो उस केस में क्या होगा? आपके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जरूर होगा बट टिश्यूज मर जाएंगे. है कि नहीं? बट बॉडी थॉट डिफरेंटली. बॉडी ने मोदी का बात सुना. उन्होंने क्या किया? बॉडी ने उसने एफिनिटी को घटा दिया. भाई प्रॉफिट कल कर लेना. अगर लोग बच गए तो कल प्रॉफिट कमाने से नहीं होगा. सारा प्रॉफिट अभी ही कमा लोगे. है कि नहीं? तो डिक्रीज द प्रॉफिट. लेट योर स्टाफ सर्वाइव. अरे प्रजा बंचिले सिना तमे राजा. प्रजा मरी गले तमे राजा नहीं कौन हो. तो इसीलिए बॉडी ने एफिनिटी घटा दिया एंड डिस्ट्रीब्यूट किया ऑक्सीजन. उससे क्या हुआ? इवन इन द हार्डशिप बॉडी को हार्डशिप फेस नहीं हुआ एंड बॉडी सर्वाइव प्रॉपर्ली. फिर आप पहाड़ के नीचे आ गए एंड देन मजा आ गया. अंडरस्टूड? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? बट यस सर. जब सपोज नंदिता जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में चली जाएगी आपका एमबीबीएस पढ़ने के लिए. फिर 2 साल बाद जब आएगी पता नहीं